My dear students, the talk on the reproduction is in continuation with my previous deliveries. I'm talking on the basics of the reproduction, gender determination. The embryo exhibits gender bipotential. यानी एक वक्त होता है कि जब एम्ब्रियो में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं. इट कैन गो इधर वे, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. इट हैव गॉट द जेंडर बाइपोटेंशियल. अराउंड वीक 7 ऑफ फीटल डेवलपमेंट द SRY सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम, यानी Y क्रोमोसोम पर एक रीजन है जिसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम. यहाँ फिर वो मेरी बात आ गई कि लड़कियां पैदा करना जो है औरत की काम नहीं है. देखें, सेक्स की डिटर्मिनिंग रीजन जो है वो Y क्रोमोसोम पर है. बिकम्स एक्टिवेटेड द SRY डायरेक्ट्स द बाइपोटेंशियल गोनैड्स. द एब्सेंस ऑफ दिस ऑन द X क्रोमोसोम causes the gonads to develop into ovaries. ये रीजन X क्रोमोसोम पर नहीं है, लिहाजा ओवरीज डेवलप करती हैं. Ovaries then produce further gender biased hormones. The presence of this gene and its products causes the gonads to descend and develop into testes. The presence of these genes and its products causes the gonads to descend and develop into testes. Testes then produce further gender biased hormones like the testosterone. Translocation of the gene to X chromosome results in an XX individual genotype but with XY characteristics phenotype. You are looking here on this flow chart. देखिएगा effects of the sex determining region on the Y chromosome. See the Mullerian duct, ये है बाइपोटेंशियल गोनैड, और ये वोल्फिन डक्ट है. ये किडनीज हैं, ये क्लोएकल ओपनिंग है. ये बाइपोटेंशियल स्टेज 6th वीक ऑफ फीटस पे होती है. द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैव द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स. ये क्यों कि इस वक्त बाइपोटेंशियल है, किसी तरफ भी जा सकती है. मुलेरियन डक्ट भी है और वोल्फिन डक्ट भी है. फीमेल अगर बननी है तो गोनेडल कॉर्टेक्स बिकम्स ओवरी इन द एब्सेंस ऑफ SRY प्रोटीन. ये जो है गोनेडल कॉर्टेक्स जो है ये ओवरी बन जाएगी, ये बन जाएगी ओवरी. गोनेडल कॉर्टेक्स, gonadal cortex becomes ovary in the absence of SRY protein. Absence of testosterone causes Wolfin duct to degenerate. अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो वोल्फिन डक्ट जो है वो डिजनरेट हो जाएगी और मुलेरियन डक्ट जो है वो डिवेलप करेगी. किस में? यूट्रस में. एब्सेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन allows the मुलेरियन डक्ट to become the fallopian tube, uterus and upper part of the vagina. Absence of anti मुलेरियन हार्मोन, यानी मुलेरियन के एंटी जो हार्मोन है वो नहीं होता फीमेल में, और क्या बन जाता है? ओवरी. किससे? मुलेरियन डक्ट से. दैट फॉर्म्स, इसमें एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी है, और दिस इज फ्रॉम द बाइपोटेंशियल स्टेज. और अगर मेल बनना है तो फिर क्या होगा? SRY protein in a male embryo directs the medulla of the bipotential gonad to develop into testes. यानी बाइपोटेंशियल का जो कॉर्टेक्स है ये बनाएगी ओवरी और मेडल्ला बनाएगा टेस्टिस. The SRY sex determining region protein in a male embryo directs the medulla of the bipotential gonad to develop into testes. Anti-Mullerian hormone from testes causes the Mullerian duct to disappear. यहाँ पर एंटी मुलेरियन हार्मोन होगा जो कि मुलेरियन डक्ट को डिजनरेट कर देगा. टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस कन्वर्ट्स वोल्फिन डक्ट इनटू सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस, एपिडिडमस एंड डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स प्रोस्टेट डेवलपमेंट एज वेल. और आपने देखा कि
prostate, seminal vesicles, vas deferens, testes, epidermis, they are derived from the Wolfram duct. और ये दोनों at the 6th week they are possible to be formed by the bipotential stage from the bipotential gonad. You're looking here, indirect effects of the SRY on male and female genital development. You're looking here कि कैसी ये labia majora, labia minora, clitoris, urethral opening, ये in the absence of the androgens, the external genitalia are feminized. वहाँ पे dihydrotestosterone causes development of the male external genitalia, glans penis है, shaft of penis है, scrotum है, anus है, the testes descend from the abdominal cavity into the scrotum by the effect of the testosterone. The pituitary gonad axis, CNS, hypothalamus, anterior pituitary, ये एक्सिस है. इंटरनल एंड इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई प्रोड्यूस करती हैं किसको? GnRH को. ये कहाँ से पैदा होता है? फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. क्या इसे कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये कहाँ पे इफेक्ट करता है? इट एक्ट्स ऑन द सोमेटोट्रॉप्स. सोमेटोट्रॉप्स कहाँ हैं? इन द एंटीरियर पिट्यूटरी. वो फिर क्या पैदा करते हैं? LH एंड FSH. इन दोनों को क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स. और LH जो किस पे अमल करता है? एंडोक्राइन सेल्स, स्टीरॉयड एंड पेप्टाइड हॉर्मोन्स. फीमेल्स ओनली, गैमीट प्रोडक्शन. FSH दोनों पे अमल करता है, ओवरीज पे भी और टेस्टिस पे भी. और LH जो है इन पर्टिकुलर इट हैज़ गॉट अ फीमेल ओनली इफेक्ट्स. स्टिमुलस, इंटीग्रेटिंग सेंटर, एफरेंट पाथवे, इफेक्टर एंड टिश्यू रिस्पॉन्स. शॉर्ट लूप नेगेटिव फीडबैक. याद रखें ये नेगेटिव फीडबैक होता है अगर LH और FSH बढ़ गए तो GnRH को कम करेंगे. दिस इज द फीडबैक स्टिमुलाई which are in this pituitary gonad axis. You must have a great look upon this. The long loop feedback may be negative or positive. Short loop negative feedback आपने देख लिया. This is the hormonal control pituitary gonad axis.